Hello students, good morning to all of you. Welcome to online classes. In this video, we will start the new chapter, change in profit sharing ratio among the existing partners. In this chapter, we will learn about how we will face the problem if there is any changes or any situation arises that come at the result of change in the profit sharing ratio, and what are the circumstances or what are the situation maybe arises for the change in profit sharing ratio. In this chapter we will deal about the valuation of goodwill, and we will learn about how to calculate the profit sharing ratio, and we will also learn about how to calculate the sacrificing ratio and gaining ratio. So this is the very important chapter for all the perspective, because this chapter, if you have command on this chapter, you can handle the many problems that maybe arises on the admission, retirement, or the dissolution of the firm. There are some common problem maybe arises after you are completing any problem in the coming chapter. So this chapter is very important chapter. So first of all we will learn. So in this chapter we will understand about the reconstitution of the partnership firm, sacrificing ratio, gaining ratio, goodwill, meaning and definition, factors of affecting the valuation of goodwill and the nature of the goodwill, methods of the valuation of goodwill. When there is a change in the profit sharing ratio existing partner, so how we will treat the treatment of the goodwill and treatment of reserve and accumulated profit, and accounting for the revaluation of assets and liabilities. So in this chapter we will learn in all this topic. So first of all we will start from the very beginning. Reconstitution of the partnership. What is the mean by reconstitution of the partnership mean? बेटा देखो, इसमें मीन्स इसके ये हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशंस मीन्स कि जब पार्टनरशिप फर्म में कोई भी चेंजेस होने वाले हैं या फिर कोई मेजर चेंजेस होने वाले हैं, तो हमारे पार्टनरशिप का जो कॉन्स्टिट्यूशंस है या फिर जो उसका फॉर्मेशन है वो चेंज हो जाएगा. तो उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन के नाम से जानेंगे, जिसमें हमको हमारी ये कंपलसरी नीड हो जाएगी कि हमें अपने पार्टनरशिप फर्म में क्या चेंज करना पड़ सकता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज करना पड़ सकता है. इसलिए हमको इसको बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म. यानी कि जब भी कोई पार्टनर आएगा जाएगा या फिर कोई किसी का डेथ होगा, डिसोल्यूशन होगा, तो बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होंगे या फिर उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही चेंज वो पार्टनर करना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में हमको रिकॉन्स्टिट्यूशन उसको हम बोलेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल लर्न अबाउट what is the reconstitution of the partnership firm. As you know that the partnership is the agreement between the partners, ठीक है, between the person for sharing the profit and losses, because the partnership firm is made for the doing business with the agreement among the existing partners. If their partners are agree to do any business, so they also decided to how they will distribute the profit sharing and how they will do their work as per their partnership deed. If there is any changes in the partnership agreement, bring the end the existing agreement, a new agreement come into force. It means यहाँ पे इस लाइन को अगर आप देखो, एनी चेंजेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट, यानी कि पार्टनरशिप फर्म में अगर कोई भी चेंजेस आते हैं जो कि एंड करते हैं एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट की, आप यानी कि जो भी एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट हो उनको वो एंड कर देता है और ए न्यू एग्रीमेंट कम इनटू एग्जिस्टेंस, यानी कि उसके बाद हमें जो न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाना पड़ता है या फिर न्यू एग्रीमेंट फॉर्मेशन करने पड़ते हैं, उन्हीं को हम लोग रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म बोल सकते हैं.
ओके, तो द चेंज इन द एग्रीमेंट रिजल्ट इन द चेंज इन द रिलेशनशिप एमंग द पार्टनर्स। अब कोई भी चेंजेज अगर होंगे तो उसमें क्या होगा कि इनके बीच का जो एग्रीमेंट है या फिर कोई रिलेशनशिप है वो भी चेंज हो जाएगा। इन सच केस ऑल दोज फर्म कंटिन्यू, इन सच केस ऑल दो द फर्म कंटिन्यू इट अमाउंट्स टू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। तो रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म में हैपन इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। तो यानी कि पार्टनरशिप फर्म में कोई भी ऐसे चेंजेज हो जाते हैं जो हमारे जो न्यू जो हमारे एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है, यानी कि जो एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट है उसको एंड कर दे और न्यू एग्रीमेंट को हमको फॉर्मेशन करना पड़े, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो कॉन्स्टिट्यूशन पहले बना हुआ था, जो एग्रीमेंट फ्रेमवर्क पहले से किया गया था, उसको हम लोग एंड करके अब न्यू एग्रीमेंट में जा रहे हैं। यानी कि जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो चेंज करेंगे। पार्टनर्स में भी इंक्रीज, पार्टनर्स नंबर ऑफ पार्टनर्स में भी इंक्रीज, नंबर में ऑफ पार्टनर्स में भी डिक्रीज। और क्योंकि बिजनेस तो करना है, तो बिजनेस जब करना है तो कोई ना कोई अगर मेजर चेंजेस होने वाले हैं जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तक इफ़ेक्ट करने वाला है। नॉर्मल चेंजेस की तो कोई बात नहीं, लेकिन जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंजेस होने वाले हैं यानी कि उनके प्रॉफिट पे इफ़ेक्ट करेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। सो लेट्स सी व्हाट आर द सर्कमस्टांसेस में हैपन for the reconstitution of the partnership firm. So first of all, here are the given some circumstances. अब यहाँ पे हम बात करें चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। अब यहाँ पे अगर कोई भी चेंज ऐसे हो जाते हैं कि चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग, अगर पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर चेंज हो रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन का ये केस हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल देखें, ए बी आर द पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन द 2:1। इन द फ्यूचर दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इनटू 3:2। अब बेटा देखो यहाँ पे अगर उनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1 है, अभी वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग फ्यूचर में प्रॉफिट जो है वो 3:1 में डिसाइड करेंगे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इट अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि जो फर्म के जो रूल रेगुलेशन हमको चेंज करने पड़ेंगे, क्योंकि प्रॉफिट अब न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग वो डिस्ट्रीब्यूशन होने वाला। तो इस कंडीशन में यानी कि प्रॉफिट इफेक्ट करने वाला है, तो इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, अब लेट्स सी सेकंड केस, एडमिशन ऑफ द न्यू पार्टनर। अभी भाई पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर एडमिट होने वाला है। फॉर एग्जाम्पल, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर केस में चारू एंड दिनेश आर द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वली। ठीक है, ऑन द 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सुधा एज ए न्यू पार्टनर विथ 1/4 शेयर। बेटा अभी तक ये अगर मान लो कि इक्वल 1/2 प्रॉफिट शेयर कर रहे थे, लेकिन अभी इनको सुधा अगर एडमिट न्यू पार्टनर के फॉर्म की तरीके से अगर एडमिशन ले रहा है, किसके लिए, 1/4 के लिए, तो इनका प्रॉफिट तो शेयर अब कम होने वाला है, क्योंकि 1/2 और 1/2 इनको अब नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 1/4 शेयर इनको किसको देना पड़ेगा, सुधा को देना पड़ेगा, जो कि न्यू पार्टनर अगर वो एडमिट हो रही है तो उसको भी तो शेयर देना पड़ेगा इनको। तो इट रिजल्ट इनटू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्योंकि अभी इनका क्या है, न्यू पार्टनर के एडमिशन की वजह से इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 1:2 का इक्वली जो अभी दो पार्टनर डिवाइड कर रहे थे वो क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसको हम लोग क्या केस बोल सकते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ न्यू रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। ओके, तो थर्ड केस में भी रिटायरमेंट ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अभी सपोज करो कि यहाँ पे 3 पार्टनर, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें अगर कोई पार्टनर रिटायर कर रहा है एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप फर्म से, तो उस कंडीशन में भी इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो बबीता, गीता एंड सीता आर द 3 पार्टनर्स हैं, जो इनका रेशियो क्या है 1:2:3। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि सीता रिटायर, अब सीता का रेशियो क्या है, 3 का रेशियो है, यानी कि 3 पोर्शन इसका जो है वो सीता का है। तो अगर सीता रिटायर हो रही है अगर, तो सीता का जो प्रॉफिट है अब आगे चल करके किसको मिलने वाला, बबीता और गीता को मिलने वाला। सीता भाई
सपोज करो कि 3 शेयर उसका डिस्ट्रीब्यूशन अब किसके किसके बीच में हो जाएगा, बबीता और गीता के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, क्योंकि जो 3 शेयर है यानी कि जो टोटल प्रॉफिट अगर 6 है तो जिसमें से 3 शेयर किसके पास चला जाता है, सीता के पास। तो सीता का शेयर किसके पास जाएगा, बबीता एंड गीता के पास, क्योंकि ये पार्टनर क्या है, सीता क्या हो रही है, रिटायर हो रही है फर्म से, ठीक है। तो इट आल्सो रिजल्ट इनटू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म, क्योंकि हमें फर्म का फिर से रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, क्योंकि भाई पार्टनर पहले 3 थे, अभी कितने रह जाएंगे, सिर्फ 2 रह जाएंगे, ठीक है। तो ये सिचुएशन हो सकता है। तो हम लोग आगे देखते हैं। अभी इस कंडीशन में देखें अगर, तो अगर डेथ ऑफ द पार्टनर, अगर किसी पार्टनरशिप फर्म में किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, भाई अगर ये यहाँ पे सपोज करें PQR पार्टनर है, जिसमें से फर्म में शेयरिंग रेशियो उनका क्या है 4:3:2 का है, R डाई, जिसमें R जो पार्टनर है वो डाई कर जाता है, ठीक है। अब P एंड Q डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट इक्वली। अब इनको आगे फ्यूचर में प्रॉफिट P और Q क्या डिसाइड करते हैं, आगे चल के भाई हम लोग इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अभी तो इनका पार्टनरशिप फर्म का क्या हो जाएगा, रिकॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा, क्योंकि ये आगे सेम तरीके से ये कैरी नहीं करने वाले हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका चेंज हो रहा है, ठीक है। इट आल्सो रिजल्ट इन टू द, या फिर अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इनको फर्म में रिकॉन्स्टिट्यूशन का करना पड़ेगा, क्योंकि फर्म में मेजर चेंजेस होने वाले हैं जो कि प्रॉफिट को डायरेक्टली इफेक्ट करने वाले हैं। तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, डेथ ऑफ द पार्टनर के केस को भी हम लोग क्या बोलेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनर, ठीक है, पार्टनरशिप फर्म। अमलगमेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म, अगर यहाँ पे देखें सपोज करें कि यहाँ पे कोई फर्म है, अगर एक फर्म ए है और फर्म बी, इसको मिला करके ए बी फर्म अगर फॉर्मेशन कर दिया जाए तो ये भी रिकॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि पहले 2 छोटे छोटे फर्म थे जिनके बीच में कंपटीशन हो सकता है, वो मिल करके अब एक फर्म बनाना चाहते हैं, तो ये केस भी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म हो सकता है। चलो तो देखते हैं यहाँ पे, ए बी आर द पार्टनर्स इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1। टू एलिमिनेट द कंपटीशन दे अमलगमेट देयर फर्म फ्रॉम C and D who are the sharing profit sharing ratio 3:1। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ABCD का 2:1 3:1। इट अमाउंट टू द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अब आगे चल के बेटा इनका जो फर्म है ABCD का शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा, 2:1 और 3:1, ठीक है। तो आगे इनके बीच में ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने वाला है, तो ये भी एक केस क्या है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का। तो आई होप कि आप लोगों ने रिकॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ लिया और केसेस क्या है, इसके सर्कमस्टांसेस क्या है, इसका आपने अच्छे से समझ लिया होगा। तो अब इसके बाद हम लोग क्या लर्न करने वाले हैं कि रिकॉन्स्टिट्यूशन के आगे के केस देखेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना, या फिर क्या क्या हमको सिचुएशन अराइजेस हो सकते हैं, ओके। तो इस वीडियो में इतने तक, आगे के वीडियो में आगे के टॉपिक कवर करेंगे, ओके स्टूडेंट।